Good morning children. Welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet My Bits and Bytes computer series 2. Children, we were doing chapter 6 of this book. Today we will revise the topics which we had covered and then move further in the chapter. So children, we had done introduction part and we had understood input, processing and output. Today we are going to read one by one about input devices and output devices. Before reading these topics, we will revise what we did in our previous video. So children, let us start the chapter. So children, here is chapter 6, input and output. Input and output devices. So children, in this chapter we are going to cover the following topics, that is input device, output device, input device and output device. Input device is keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone, web camera, and output devices, monitor, printer, speaker. So these are the input and output devices about which we are going to read in detail. So we had done introduction part. We will be reading about these input and output devices in detail. So let us first revise what we did in our previous video. Hi children, you have studied about keyboard and monitor in the last 2 chapters. Let us know more about these input and output devices. So children, as we have discussed in our previous chapters, before doing any work on the computer, we give some instructions to the computer, and these instructions which we give to the computer for performing any work is called input. For example children, if you want to do a simple addition, you will provide or you will instruct the computer with by giving some numbers, that is which number the numbers which you want to add plus the add sign. These are the datas or the input which are given to the computer in the form of instructions, and then the processing of the number is done in the CPU and we get a result which is called output. The result is displayed on the monitor, and this result is called output, and it is displayed in the monitor. That is why it is called output device. What is called output device? Monitor is called the output device. As we have given instructions through the keyboard, so this keyboard here, the keyboard is a input device and the final result we get on the monitor. That is why this monitor is called the output device. Similarly, we have many more output devices which we can have in the computer, and we'll be reading about all these in detail. So we have understood the set of instructions that we give to a computer is called input. So here we have input, and the part of the computer used to give these instructions are called input devices. और जिन डिवाइसेस से हम इन इनपुट को या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देते हैं, इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. और उसके बाद हमारे पास है द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. आफ्टर द प्रोसेसिंग we get a result, this is called output, and the device that helps in getting and viewing the desired result are called output devices. Children, for example, if you have written something on the computer, this writing or the typing is done through the keyboard. So keyboard is the input device and it is processed through the CPU. So processing is done at the CPU, and as a result we get written part on the screen, displayed on the screen. So the screen, that is monitor, is the output device, and if you get it printed, then your printer is the output device. अगर आप printed form में लेंगे तो printer आपका output device है. अगर आप soft copy आपके पास है तो that is the monitor is the output device. And so children, complete processing of the computer is done through these 3 words. That is, let us read, let us understand the
First is input, giving instruction. Then after getting the instruction, computer does some work, and then as a result of work, it gives output. So these are the three steps how a computer performs any work, starting from simple to कॉम्प्लेक्स. छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, सबसे पहले हमको इनपुट देना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन. फिर उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर के कंप्यूटर विल प्रोसेस वॉट एवर इज नीडेड. आफ्टर दैट, आफ्टर प्रोसेसिंग, द रिजल्ट इज शोन ऑन द मॉनिटर. इट इज़ कॉल्ड आउटपुट. सो दीज आर द थ्री वर्ड्स विच combine together to show the complete processing of the computer. इन तीनों वर्ड से बच्चों इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट से हमारा पूरा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग होता है या काम होता है, और इसी को लेकर के हम आगे समझेंगे हाउ दीज कंप्यूटर्स वर्क. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन इन आवर बुक चिल्ड्रन. हियर वी हैव we are going to make a juice. For making a juice, we are taking example of these because the processing of the juice is same as the processing in the computer. For example, if you want to process a juice, आप क्या करोगे? You will take some oranges. These oranges are given to the machine or the mixer or the juicer, and this juicer will accept these, take this as a instruction. और ये जो instruction के फॉर्म में हम ऑरेंजेस दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इनपुट. हम इनपुट कर रहे हैं ऑरेंजेस इनटू द मशीन कॉल्ड जूसर. दिस जूसर इज़ लाइक अ सीपीयू. जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है वैसे ही ये सीपीयू है. जैसे कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेस करता है उसी तरह ये प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमको मिलेगा ग्लास ऑफ जूस. दिस जूस इज़ द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट इज़ कॉल्ड द आउटपुट. तो 3 स्टेप हमारा है. सबसे पहले इनपुट किया ऑरेंजेस को, देन ऑरेंजेस की प्रोसेसिंग हुई, उससे जूस निकला, और जो जूस निकला वो हमारा आउटपुट हो गया. सो दीज आर द 3 स्टेप्स हाउ वी कैन प्रोसेस द how we can extract the juice from the oranges. और इन these are the 3 main steps how computers work: input, processing and output. Same as in the case of oranges, put oranges in the juicer. हमने जो डाटा था, instructions था, उसको लिया, that is oranges, and these oranges are put into the juicer. फिर juicer makes juice from the oranges. From these oranges, juicer makes the juice, and this juice we get orange juice, and this juice is output. So the oranges were the input, and making juice is processing, and getting juice, orange juice is output. So इन तीनों स्टेप से हमें ऑरेंज जूस मिला, एंड दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेसिंग डन इन द सिमिलरली दीज आर द 3 स्टेप्स डन इन द कंप्यूटर ऑल्सो. अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा, और लास्ट टाइम भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. नाउ चिल्ड्रन, आर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टोस्टर. अब यहाँ पे हमें ब्रेड को ग्रिल करना है. अब क्या करेंगे? व्हाट इज़ ब्रेड? वी हैव टेकन ब्रेड. ब्रेड इज़ इनपुट. ब्रेड इज़ इनपुट. हम टोस्टर में व्हाट आर वी गोइंग टू पुट इनटू द टोस्टर? वी आर गोइंग टू पुट the slices of bread into the toaster. अब the whole process of making toast will be done in the toaster. toaster में पूरी processing होगी कैसे ये टोस्ट बनेगा. उसके बाद जो हमें बाहर बना हुआ टोस्ट मिलेगा, that is the output. So these are the 3 steps how we do any function on a computer. इसी तरह से हम कंप्यूटर में भी इनपुट करते हैं डाटा को, या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इनपुट इज़ नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. देन टेकिंग दोज इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर परफॉर्म्स अ वर्क. कंप्यूटर उस काम को करता है, और वो पूरी जो करने का प्रोसेस उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं. और उस प्रोसेसिंग के बाद वी गेट अ टोस्ट एज अ आउटपुट. हमको आउटपुट मिलता है, और कंप्यूटर में भी जो भी प्रोसेसिंग होती है उसका रिजल्ट जो हमको मिलता है वो है आउटपुट. तो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड up to some extent. Now the third example, the most simple example which you can do yourself also. Now we are taking the example of computer. हम कंप्यूटर ले रहे हैं. अब कंप्यूटर में as I keep on telling you about adding the 2 numbers, आप सबसे पहले 4 + 5 आप लिखेंगे नहीं, आप 4 टाइप करेंगे, फिर प्लस टाइप करेंगे, फिर 5 टाइप करेंगे. ये 3 नंबर्स ये 3 चीज़ें आपने कंप्यूटर को दिया. यू हैव गिवन और यू हैव इनपुट into the computer. How did you input these things? Through the keyboard.
सो कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस हियर. यहाँ पे जो कीबोर्ड आपका है, आपने ये सारे नंबर को किससे टाइप किया? यहाँ से टाइप किया. यू हैव टाइप्ड दीज नंबर थ्रू द कीबोर्ड. दिस इज़ योर कीबोर्ड. ये आपका कीबोर्ड है. अब कीबोर्ड से आपने इसको इन तीनों नंबर्स को ऐड किया, मतलब एक एक करके. ऐसा नहीं कि 4 + 5 आप लिखोगे. यू कैन सी कॉमा देयर. 4 + 5. ये चीज़ें, ये रॉ मटेरियल है, ये इंस्ट्रक्शन है जो आपने इसको दिया. अब वो कैसे प्लस करेगा? अब वो अरेंज करेगा इन नंबर्स को. द कंप्यूटर विल अरेंज दीज नंबर्स. See how it has arranged. Firstly, it was at random you had given and it was written just like that. ऊपर 4 है, नीचे प्लस है, बीच में 5 है. लेकिन यहाँ पे फिर अरेंजमेंट विल बी डन बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर इसको अरेंज करेगा 4 + 5. अब अरेंज करने के बाद प्रोसेसिंग, इसकी ऐड करने की प्रोसेसिंग जैसे हमारे दिमाग में चलती है ना. अगर हमको किसी ने बोला कि 4 + 5 को ऐड करो, तो हम लिखे बिना भी ऐड करते हैं. हम अपने दिमाग में सोचते हैं, और वो दिमाग हमारा क्या है? हमारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर का CPU है. तो उसको ऐड करने का काम कौन करेगा? CPU. दिस इज़ द CPU. यू कैन सी हियर दिस वन इज़ द CPU. ये CPU है. यहाँ पे आपने कीबोर्ड के थ्रू यू हैव एंटर्ड द नंबर. यहाँ पे नंबर को इनपुट किया. किस नंबर को इनपुट किया? 4 को, प्लस को और 5 को. 4, प्लस, 5. इन तीनों चीज़ों को आपने एंटर किया एज अ इनपुट. उसके बाद दिस इंस्ट्रक्शन, इट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन. दिस इंस्ट्रक्शन इज़ टेकन बाय द कंप्यूटर. ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लेगा और उसके बाद क्या करेगा? पूरी प्रोसेसिंग करेगा, इसे ऐड करने की प्रोसेसिंग करेगा. उसके बाद ये जो CPU, कौन CPU ऐड करेगा? प्रोसेसिंग कहाँ होगी? CPU में. एज आई टोल्ड यू, द होल प्रोसेसिंग विल बी डन इन द CPU. CPU क्योंकि दिमाग होता है, जो भी सोचने समझने या कैलकुलेशंस चलती हमारे दिमाग में चलती है. तो यहाँ पे भी CPU काम करेगा. उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट इज शोन ऑन द मॉनिटर. ये आपका मॉनिटर है. दिस इज़ योर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर. अब पूरी प्रोसेसिंग जो होगी इस कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर होगी, में होगी. मतलब कि डिस्प्ले यहाँ पे होगा. डिस्प्ले करने का मतलब फाइनल रिजल्ट है. सो इसलिए हम इसको आउटपुट कहेंगे, या फिर मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे. हम इस नंबर को आउटपुट कहेंगे. 9 इज़ आउटपुट एंड द मॉनिटर इज़ आउटपुट डिवाइस. सिमिलरली 4 + 5, 4 + and 5 are input and the device used here is keyboard. Children, I hope by now you must have understood what is input, what is processing and what is output device. So this much we had done in our previous video. Now let us start our next topic. That is, children, now we are going to read about the devices, input device and output device. तो जो हमने समझ लिया इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है. अब हम डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. सो हियर यू कैन सी in our next page we have, you must have understood the concept of input, process, output. आपको अच्छे से concept समझ में आ गया. What is input, what is process and what is output. I hope you have understood the concept of input, process and आउटपुट. तो ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई. नाउ इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इनपुट एंड डिवाइसेस, input and output devices. After going through these examples, now let's have a look at some input and output devices. So the instructions or the input are given to the computer through these devices. So let us understand. Now children, अब यहाँ पे you can see input device. Some of the input devices are keyboard. The first simplest and the very common input device is keyboard. We have already studied about keyboard. हमने पहले भी कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है. A keyboard is an input device which is used to enter words, numbers in the computer. So what all we can enter through this keyboard? This is keyboard. सबने देखा होगा, ये कैलकुलेटर की तरह होता है और जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस चैप्टर अबाउट दिस एंड अबाउट कीबोर्ड ऑल्सो यू हैव स्टडीड कि द कीबोर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी कीज़. छोटे छोटे बटन्स होते हैं. दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज़ एंड दीज कीज़ हैव सम ऑफ द नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स इनमें होते हैं. नाउ अ कीबोर्ड
इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू एंटर वर्ड्स एंड नंबर्स। हम इससे वर्ड्स और नंबर्स को इनपुट करते हैं और या हम इंस्ट्रक्शन देते हैं टू द कंप्यूटर। उसके बाद आर सेकेंड इनपुट डिवाइस इज माउस। इफ़ यू are not using keyboard for entering the number or giving input or giving instruction, you will use mouse. Mouse is an input device which is used to draw pictures. जैसे हम पिक्चर्स अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम इसे यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है देन वी यूज़ दिस ऑन द स्क्रीन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इसलिए हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब यहाँ पे वी हैव this mouse. Children, in the picture also you can see a small object which resembles a mouse. जो mouse को resemble करता है, जैसे छोटा सा mouse होता है, the way it sits, पूरा जब पोज लेके वो बैठता है तो एकदम इस वाले माउस की तरह दिखता है, इसलिए वी हैव गिवन द नेम एज माउस। अ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, किसी चीज़ को शो करते हैं। शो मीन्स एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। ड्राइंग और कलरिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। द अदर नेम ऑफ माउस इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। किसी भी चीज़ को पॉइंट करना है तो हम माउस का हेल्प लेते हैं, सो दैट इज़ वाई अदर देन की माउस इज़ अनदर input device which is used to give instructions to the computer. After that we have joystick. A joystick is an input device which is used to play games on the computer. ये जो this seen on your picture is a joystick. इसको हम कहते हैं joystick. Children, ये joystick है, इसको यूज़ कर के हम गेम खेल सकते हैं। That is why अब गेम खेलने के लिए इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कंप्यूटर पे, तो इसीलिए हम इसको इनपुट डिवाइस करेंगे। तो हम इसके थ्रू कंप्यूटर पे हम गेम खेलते हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उस गेम को खेलने के लिए देना है वो हम इस जॉयस्टिक के थ्रू देते हैं। दैट इज़ वाई द जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। नाउ टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट 3 इनपुट डिवाइस। फर्स्ट इज कीबोर्ड, सेकेंड इज माउस एंड थर्ड इज जॉयस्टिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्कैनर। चिल्ड्रन, हमें कोई भी चीज़ कंप्यूटर में डालना है, जैसे कि हमें कोई फ़ोटो डालना है या कोई सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करते हैं, किसी पिक्चर को स्कैन करते हैं, किसी बुक को स्कैन करके हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी हमको फर्दर उसके में काम करना है। तो स्कैनर से भी हम कुछ इनपुट करते हैं, कुछ कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ वाई स्कैनर इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कॉपी एंड सेंड इमेजेस टू अ कंप्यूटर। हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं स्कैनर के थ्रू और सेंड भी कर सकते हैं। दीज इमेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स और लोगोज। तो ये फोटोग्राफ के फॉर्म में हो सकते हैं और ड्राइंग के फॉर्म में हो सकते हैं, लोगोज के फॉर्म में होते हैं। तो स्कैनर इज़ अनदर इनपुट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन, हियर डू यू नो अ स्कैनर इज समवॉट लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। जैसे कि हम फोटोकॉपी सेम एज आई टोल्ड यू कि कभी कभी किसी तुम्हारा सर्टिफिकेट वगैरह है उस पर भी अगर हमको काम करना है तो हम स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं, फिर उसके बाद भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे लाके उस पर देखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो या भेज भी सकते हैं, सेंड करना है तो सेंड भी करते हैं। तो ये फोटोकॉपी करने वाली मशीन की तरह ही काम करता है, किसी चीज़ को स्कैन करता है। तो स्कैन इज़ समवॉट लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन, जो हमारे एक कॉपी से कई सारी कॉपियाँ बनाता है, फोटोकॉपी करता है। फिर माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब माइक्रोफोन्स यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को बोल करके, जैसे कि हम अपने मोबाइल में भी बोल करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कुछ भी गूगल से सर्च करना है तो हम स्पीकर ऑन करके बोलते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं फ़ोन को। तो इसी तरह हम यहाँ पे माइक्रोफोन को यूज़ करके कुछ भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि ये करो। नाउ विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे वो जैसे कि अभी कोई वीडियो बना रहा है तो वीडियो बनाने के लिए हमको क्या करते हैं, हम लैपटॉप से एक माइक को अटैच करते हैं और उसके बाद उसमें बोलते हैं तो वो उसमें रिकॉर्ड होता है। तो दिस इज़ अनदर इनपुट डिवाइस। यहाँ पे भी हम वी आर प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। हम कुछ
इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस हो गया. देन next is web camera. A web camera is an input device, as we have studied. Even web camera is a input device that is used to capture photograph and store it in a कंप्यूटर. तो जो वेब कैमरा होता है ये भी हमारी फ़ोटो खींचता है और उसको कैप्चर करता है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग के टाइम भी हमारी फ़ोटो कैप्चर कर सकता है, हमारा वीडियो कैप्चर कर सकता है और कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है. सो दिस इज इट इज़ ऑल्सो गिविंग सम इंस्ट्रक्शन और सम इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर और समथिंग टू द कंप्यूटर. सो दैट इज़ वाई वेब कैमरा इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, जो भी चीज़ कंप्यूटर को कुछ प्रोवाइड कर रही है, कुछ दे रही है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वो कुछ इनपुट कर रही है कंप्यूटर में और उसके फर्दर वर्क करने के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट विच वी स्टडीड जस्ट नाउ आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस. जैसे कि वी हैव स्टडीड अबाउट कीबोर्ड. whatever numbers or alphabets we want to input into the computer is provided through the keyboard. हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. Then mouse is used to do drawings in the computer or select any object. That is why it is called as pointing device. तो ये भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ही यूज़ होता है. तो इसीलिए माउस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट डिवाइस. उसके बाद जॉयस्टिक है. दिस ऑल्सो गिव्स इंस्ट्रक्शंस वाइल प्लेइंग अ गेम. जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हम इसको यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द कंप्यूटर. सो दिस जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो ये जॉयस्टिक भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है. देन आफ्टर दिस वी हैव a scanner. As I told you, scanner is another input device. इससे भी हम बहुत चीज़ कॉपी करके कंप्यूटर में लेते हैं. It works like a copier machine. किसी चीज़ को कॉपी करने वाली मशीन की तरह यह काम करता है, चाहे वो इमेजेस हो, फोटोग्राफ्स के फॉर्म में हो, ड्राइंग्स के फॉर्म में हो, लोगोस के फॉर्म में हो, उसको ले करके कंप्यूटर को हम देते हैं. इसलिए स्कैनर मशीन इज़ अनदर input device. After that we have microphone. As I told you, microphone is also used to record the voice. तो जब वो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है तो ये भी कंप्यूटर को हम यहाँ पर भी किसी न किसी तरह से कुछ दे रहे हैं. That is why this microphone is also one of the input device. And web camera, as I told you, it is an input device that is used to capture photograph and store it in a computer. So here also we are providing something to the computer in the form of photos. So this is also called, web camera is also called as input device. तो ये सब हो गए input device. Now children, let us read about output device. The second part of our chapter is output device. Output means the on which we get final result. अब फाइनल रिजल्ट हम किस तरह से पा सकते हैं कंप्यूटर से. एक तो हम द फाइनल रिजल्ट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. सो मॉनिटर इज़ द मे बी द आउटपुट डिवाइस. समटाइम्स in some cases monitor can be the output device. Sometimes if you don't want the soft copy, you want a hard copy, you get it printed. That time printer is the output device. और उसके बाद if you are listening something from the computer, जहाँ पे speakers are used, that time speaker is the output device, because whatever you are listening is coming to you through the speaker. speaker से हम आवाज़ सुन करके रिजल्ट ले रहे हैं. so that is why the output device is speaker there. so let us see about each one. यहाँ पे मॉनिटर. बाय नाउ चिल्ड्रन यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ मॉनिटर. अभी तक आप मॉनिटर बहुत अच्छे से जानते हो कि मॉनिटर होता क्या है. मॉनिटर इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच लुक लाइक अ कंप्यूटर, और दिस पार्ट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन. अब जो भी इंफॉर्मेशन इज़ परफॉर्म्ड या प्रोसेस्ड इन द कंप्यूटर इज़ शोन ऑन द और डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. तो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है which is used to display the result on its screen. क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट को स्क्रीन पे शो करता है. that is why it is known as output device. Now monitor, as we have studied in our previous chapter, monitor is also known as VDU. VDU means visual display unit. that unit which displays everything, जो हमें दिखाती है, शो करती है. तो इसलिए हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं. किस तरह से डिस्प्ले करती है, शो करते हुए, दिखाते हुए. तो इसलिए हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं.
Now, next one is printer. Just now I told you there are three. There may be among these three any one may be the input device while doing the work. अगर आप monitor पे display कर रहे हो तो monitor is the output device. If you are displaying through the printer, means you are getting it printed, then printer is output device. And if you are listening something from the computer, the speaker is the output device. The printer is an output device which is used to get our output on a paper. यहाँ पे हमें प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे आउटपुट मिलता है. एंड द रिजल्ट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर screen is called the soft copy. As I told you, the result can be received in two forms. One is hard copy and the other is सॉफ्ट कॉपी. तो सॉफ्ट कॉपी द वन विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर. हमने पहले भी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के बारे में पढ़ा है. जो सॉफ्ट कॉपी जो भी इंफॉर्मेशन हमको मॉनिटर पे डिस्प्लेड होती है उस इंफॉर्मेशन को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. क्यों सॉफ्ट कॉपी कहते हैं? क्योंकि इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज यू कैन डू इन द सॉफ्ट कॉपी. अगर आपको किसी भी तरह का चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, आप इजीली सॉफ्ट कॉपी पे कर सकते हो क्योंकि इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द monitor. So in case of soft copy, monitor is the output device, and if you get it in the form of hard copy, that is if you get it printed through the printer, then the printer is the hard copy. Printer क्या होता है? Hard copy होता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के output है, and these output can be soft copy or a hard copy. So speakers are the another output device. As I told you, if you want to hear something from the computer, आप कोई गाना सुन रहे हो या कोई न्यूज़ सुन रहे हो या किसी की स्पीच सुन रहे हो और आप स्पीकर यूज़ करके कर रहे हो, तो वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द कंप्यूटर यू आर गेटिंग थ्रू द स्पीकर. सो हियर द आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर. यहाँ पे स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव 3 आउटपुट डिवाइसेस which we have studied in the chapter. So the first output device is monitor. The first output device is monitor. जब सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पे डिस्प्लेड होता है तो हम उसको वहाँ उस केस में मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है. अगर यही चीज़ हम हार्ड कॉपी के फॉर्म में निकालते हैं और वी आर गेटिंग इट थ्रू द प्रिंटर, सो द प्रिंटर बिकम्स द आउटपुट डिवाइस. और अगर इसको हम सुन करके रिसीव कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग इट फ्रॉम द कंप्यूटर, देन वी हियर इट थ्रू द स्पीकर. सो स्पीकर इज द आउटपुट device. So by now you must have understood what is input, what is output, and what is input device and what is output device. So children, before concluding the chapter, let us see whatever we have studied in the chapter. Let us revise. So children, this we had done. Then we had input devices. Children, input devices. Some of the input devices are keyboard. Keyboard is the input device from which we enter numbers or words to the computer, or we provide numbers or words to the computer. Then we have mouse. Mouse is another input device. It is used for pointing any object on the screen, or it is also used for drawing on the screen, or it is also used for selecting any object on the screen. So this is another input device. Then children, we have joystick. Joystick is used to play any game. जब हम गेम खेलते हैं तो whatever instructions are given to the computer are given through the joystick. इस joystick से हम instructions computer को देते हैं. तो here in this case joystick is the input device. Now next one is scanner. So children, scanner is another input device. Through the scanner we can provide images or pictures, photos, drawings or logos to the computer. So this is another input device. Now microphone. Microphone se we can speak something and give the information. So here microphone is the input device. The next is web camera. Web camera, through web camera also we can provide we can capture photographs,
which can be used by the computer or can be stored in the computer. So these are the input devices. Then output device, children. Output device, we have a monitor, then we have a speaker, then we have printer. These can be the output devices. So children, only this much for today. With this we conclude today's video. Read the chapter and learn the difficult words. We will meet again in our next video with the book exercises of this chapter. Thank you.